सारे नाम मेंशन करते हैं। किने किने कितने मैं
आज जलंधर टीम में से कौन है मुझे बताओगे? कोई भी नहीं है जलंधर टीम से। किसी ने ज्वाइन नहीं किया जलंधर टीम से? जसप्रीत, वी आर वेटिंग फॉर यू। जसप्रीत थोड़ी गया मैम। अदिति मैम, अदिति मैम है सेशन में? अदिति मैम। हाँ जी मैम मैम, प्रकाश से अभी बात हुई है, ही इज ज्वाइनिंग इन अ मोमेंट। बस अभी आ रहा है, अभी ओके, बात हो गई है मैम, हो गई है। ठीक है।
हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून प्रकाश। हाँ जी ਮੈਮ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਸੀ 2 ਈਅਰ 8 ਮੰਥਸ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੈਸਚਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟਬਨਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਮੰਥ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਟਿਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਲੂਨਲ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਮੰਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ, OT-BT ਸਪੀਚ ਨਾਲ ADL ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਦੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵਰਡਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਰਡਸ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। OT ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਪੈਨਸਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਡੋਟਸ ਵਿਦ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਸਰ ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। प्रकाश की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आपकी आवाज हाँ, नहीं आ रही है। अब आ रही है मैम? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। उसकी पेरेंटिंग के लिए वो ना बहुत वरीड थे उनके पेरेंट्स जब हमारे पास स्टार्टिंग में जब आए थे। बहुत वरीड थे क्योंकि उनको लुकोवरिन के बारे में नहीं पता था, उनको बायोमेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता था। और ऑलमोस्ट मेरे से भी डाउट वो बहुत कंसर्न थे इस रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉड का जब रिपोर्ट आई थी तो उसका ना फ्रॉड पॉजिटिव था, तो बहुत ज़्यादा
पैनिक हो गए थे कि पॉजिटिव आगे बच्चा हमारा क्या होगा, है ना, पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए। तो उसके रिलेटेड भी पेरेंटिंग सेशंस उनके हुए, उनके उनके बच्चे के चाचू के उनके और उनकी मदर के, तीनों की पेरेंटिंग सेशन करी थी 1-1-1 करके, कि फ्रॉड के बारे में एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद अब वो बहुत खुश हैं इस थेरेपी सेंटर से, इस रिलेटेड, क्योंकि उसके वर्ड्स नहीं थे बेसिकली, जिस चीज़ के लिए आए थे वो फुली फिल है। और अभी कुछ टाइम वो 1 मंथ या 2 मंथ में वापस अब चले जाएंगे। जबकि वो सोच के किसी दूसरी सेंटर में गए थे, यहाँ पे जैसे केयर फॉर ऑटिज्म है, वहाँ गए थे, उन्होंने 6 मंथ का उनको टारगेट दिया था कि 6 मंथ के बाद हम बताएंगे। और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आ गई है। अभी स्पीच में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो पूनम मैम आपको हेल्प कर देंगे। नहीं, इश्यूज तो मैम कोई ऐसा एज इट इज इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं उसके कोई। मैं बोल रहा हूँ जैसे उसके ना वही उसमें वर्ड्स थे सिर्फ, वर्ड्स भी अभी प्रॉपर आए नहीं हुए थे, अब उसके वर्ड्स तो क्लियर हैं ही हैं। साथ में कम्युनिकेट करने, जैसे टू वे कम्युनिकेशन में भी बीच में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे पोटी आई, ये टर्म्स यूज करता है वो। एक और क्यांश बच्चा है, जैसे उनको तो क्यांश इधर आओ, ये सारे वर्ड्स अपने यूज करता है वो। पहले कम्युनिकेशन नहीं थे उसके तो वर्ड्स भी नहीं थे क्लियर, अब उसके पास वर्ड्स हैं क्लियर। अच्छा पूनम मैम, आप कुछ अगर अपना कुछ इनपुट देना चाहें इस केस में रिगार्डिंग कि अभी कुछ अगर हम कोई नई एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, है ना। आई थिंक अभी बहुत अच्छा केस स्टडी है, तो आई थिंक हम सब अगर कोई इनपुट दे सके हाउ टू इम्प्रूव इज। अभी उनके मेन कंसर्न्स क्या हैं प्रकाश? उनके मेन कंसर्न वही कि स्पीच में ना जो उसकी खुद की इनिशिएशन होनी चाहिए वो नहीं है। और एकेडमिक्स में वो चाहते हैं कि एकेडमिक्स ना थोड़ी और इम्प्रूव हो, जैसे अल्फ़ाबेट सारे पता लग जाएं उसे, फ्रूट्स नेम पता लग जाएं उसे। और जैसे वही पिंसा ग्रास्पिंग में उसकी कि पेंसिल होल्ड से करके कम से कम ट्रेस तो करना स्टार्ट कर दे। और वो ये नहीं कर वाले रहा? main जो concern- नहीं, अभी ट्रेसिंग वगैरह में नहीं वो कर रहा, उसकी कोई ग्रीपिंग थी नहीं। और एक कितने और जो सेशन में उसमें आता है? अभी तो प्रीमियम में है। अच्छा। हाँ, तो अभी वो, और एक और उनका मेन कंसर्न वो डब्ल्यू सिटिंग का है उसका, कि वो डब्ल्यू हम्म। सिटिंग उसकी है, वो वाला कंसर्न है उसका। हम्म। तो अभी तो सबसे पहले पेंसिल ग्रास पे ही काम करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे वांट स्पेशल एजुकेशन की बाद में जाए तो स्कूल में अमेलगमेट होने के लिए इजी हो जाए, इजंट इट? यही उनका मेन मेन होगा। अच्छा, अब स्पीच में आई थिंक इनिशिएशन ऑफ स्पीच में थोड़े ओपिनियंस ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम पूनम से ही डिस्कस करेंगे। पूनम कैन गिव देम सम आइडियाज अबाउट इनिशिएशन ऑफ स्पीच। पूनम भटिंडा, भटिंडा से नहीं, लुधियाना। हाँ जी प्रकाश सर, आपने बताया कि 2 वर्ड फ्रेजेस बच्चा कर रहा है ना? हाँ जी मैम। रूटीन में कर रहा है या सिर्फ इमिटेशन है सर? नहीं, रूटीन में करता है उसको, पहले लास्ट वीक से वो करने भी बीच में लग गए हैं। ठीक है। पहले इमिटेशन थी पहले, पर अब इमिटेशन नहीं है, सारी हाँ जी, इमिटेशन नहीं है। इनिशिएशन के लिए जैसे हमें पता है कि पहले तो हमें सेंटेंस फॉर्मेशन और WH फैमिली क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर पेरेंट्स का मेजर कंसर्न यही है कि बच्चा इनिशिएट करे, तो हमें ये करना चाहिए कि जैसे साथ साथ में हम सेंटेंस फॉर्मेशन और WH फैमिली क्वेश्चंस करवाते रहें, उसी के पैरेलली शॉर्ट मैसेज पासिंग या शेयरिंग के लिए वर्बल बच्चा बोल के जाके करे, है ना। तो उस चीज से ये स्टार्ट हो सकती है, छोटे छोटे रोल प्ले करवा लें, पपेट प्ले करवाने से। तो इन सब चीजों से हेल्प हो सकती है हमें इनिशिएशन में। ओके मैम। कोई और अपने सजेशन देना चाहेगा स्पीच के लिए? रश्मि मैम मलेरकोटला। रश्मि मैम, यस मैम। कुछ दसना चाहोगे मैम? इतने स्पीच ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅਦਿਤੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਵਰਡ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚनिंग करे। ठीक है। नहीं मैम, समझा नहीं मोगा मैम, था प्लीज रिपीट पूनम कर मैम, दियो। सिमरन मैम।
ਰਸ਼ਮੀ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਅਦਿਤੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਰਡ ਨਿਕਲੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਬੱਚਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ? कोई भी ओके नहीं मैम है, ओके। मोगा टीम से कोई भी नहीं है। है मैम। अगर आप लोग कोई अपना इनपुट देना चाहें, स्पेशली रिगार्डिंग इनिशिएशन, जो आई थिंक वर्ड्स आ जाते हैं और पेरेंट्स हमें हमेशा कहते हैं कि इनिशिएशन कब करेगा, तो उसके लिए अगर आप में से कोई भी देना चाहे, होगा टीम। हाँ जी मैम, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਿਕਚਰ ਐਂਡ ਪਿਕਚਰ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Anybody else, अगर किसी ने कुछ आइडिया है, फरीदकोट से एनीबडी इज देयर? एनीबडी फ्रॉम फरीदकोट इज देयर? आप में से कोई आइडिया देना चाहे रिगार्डिंग स्पीच और ओटी एक्टिविटी? दोनों ही उनके कंसर्न्स है ना, एक पेंसिल ग्रास उनका कंसर्न है, डब्ल्यू सिटिंग इनका कंसर्न है, और एक इनिशिएशन ऑफ स्पीच। ये तीनों के लिए अगर कोई आइडिया दे सके। मैम पेंसिल ग्रास्प के लिए तो वही, जैसे हम ट्राइपॉड ग्रास्प का देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ग्रेन सॉर्टिंग कर सकते हैं, और रबर बैंड डाल के जो 3 फिंगर्स में, तो उससे ग्रिप बन सकती है उसकी। एक बच्चे को चॉइस मेकिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं। ਮੈਮ ਅਗਰ ਡਬਲਯੂ ਸਿਟਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਡਬਲਯੂ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੈਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਮਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਸਿਟਿंग करवा सकते हैं। पहली बात तो नैन्सी, हमें ना बच्चे को इग्नोर करना है। वो जैसे बैठा है उसको बैठे रहने दो। हमने उसके पोस्चर को ठीक करने के लिए उसको हम बेयर वॉक जैसे हम एक्टिविटीज है जो हम उस पे करा सकते हैं, हमें वो करानी चाहिए। हमें उसको इंकरेज करना चाहिए, हमें उसको एक्टिविटीज में इंडल्ज करना चाहिए कि ताकि वो डब्ल्यू सिटिंग को अपना भूल जाए। क्रॉलिंग अंडर द टनल हमें कराना चाहिए कि जिससे वो अपनी चीजें जो डब्ल्यू सिटिंग पे बैठता है ना, वो अपनी ये सब चीजें, हमें उसको नोटिस नहीं करना कि वो डब्ल्यू सिटिंग में बैठा है। मेरे पास भी ऐसा बच्चा है यहाँ पे इनायत, उसकी मम्मी हमेशा कंप्लेंट करती है कि वो डब्ल्यू सेटिंग में बैठती है, पर हमें उसको इग्नोर करके हमें ये सब एक्टिविटी करानी पड़ेगी। जैसे फ्रॉक जंप करा दो, बेयर वॉक करवा दो, ये सब चीजें। और हम जैसे उसको क्रैब वॉक करवा सकते हैं, ये सब चीजें हमें उसको करवानी पड़ेगी। जैसे हमें बैलेंस बोर्ड पे बैलेंस बीम के ऊपर उसको खड़ा करके हमें वो कराना पड़ेगा, उसको खड़ा कराने के लिए। अगर हम करा से थोड़ा और भी अगर कुछ कराना चाहते हैं तो उसको टेबल में बैठ के साथ में टेबल चेयर लगा के उसको साथ में बैठ के नीलिंग की कोई काम करवा सकते हैं हम, जैसे। ठीक है, हमें ये करना है। व्हील बेयर वॉकिंग करवा लो, इसको ऐसे करवा लो। हमें बच्चे को मतलब रोकना नहीं है ऐसे कि आपने ये ऐसे क्यों बैठे हो, ये हमें उसका पोस्चर को ठीक करने के लिए हमें उसको 1 लेग पे हम स्टैंड खड़े कर सकते हैं कि 1 लेग पे स्टैंड हो। ठीक है ना, हमें ऐसे ये सब चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसको इंडल्ज करने के लिए हमें बच्चे को उसको हटाना पड़ेगा कि डब्ल्यू शेप में हमें उसको बिजी करना पड़ेगा उसके वर्क से। हम और भी कोई है जो मुझे बता सकता है डब्ल्यू शेप में? यहाँ पे रश्मि मैम आप? मैम उसको मतलब उसको पोस्चर करेक्ट करके बिठाते हैं हम्म, जब कोई बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठता है तो
ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਨਲ ਵਾਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ये ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਸ ये तो मैंने भी बोल दी है। अगर आप लोगों में से किसी ने और भी कुछ है जो करवा सकते हैं, आप मुझे बता दो। हमने मैम यही करवाए हैं। ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਗ ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ हाँ जी। ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ हाँ जी। हाँ ਉਹਦੇ जी। ਨਾਲ ਵੀ improve ਹੋਏਗੀ। ठीक है। तो हमें उसको जैसे इसको चाइल्ड को इनकरेज करना चाहिए टू मेंटेन उसका पोस्चर को शॉर्ट पीरियड के लिए। हमें उसको इन टच वो करना चाहिए, इनकरेज कि हाँ तू अच्छी तरह बैठ रही। अगर वो बच्चा हट रहा है तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, गुड यू आर डूइंग। हमें उसको पजल्स गेम्स करानी चाहिए, कलरिंग करानी चाहिए, ताकि उसका इंडल्ज कहीं और कहीं उसका दिमाग और कहीं जाए, ठीक है, ताकि वो अपने डब्ल्यू शेप में भूल जाए बैठने के लिए। आई थिंक हमने बहुत बहुत अच्छे से डब्ल्यू सिटिंग टेकअप कर लिया है। और प्रकाश, आई थिंक आप भी ऐसे कुछ करो। एनीथिंग एल्स प्रकाश, आपने कुछ पूछना हो? प्रकाश, मुझे फोन आपने कैमरा नहीं ऑन किया ना, तो मुझे आप मिल ही नहीं रहे हो, नहीं मैम, मैं यही हूँ, है ना? CP। हाँ, तो फिर कैमरा तो सेशन आप ले रहे हो तो कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? नहीं हाँ, सेशन पूरा ले लिया और कैमरा भी ऑन किया, है ना? प्रकाश, एनीथिंग एल्स, कोई और किसी एक्टिविटी के लिए अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए? नहीं, वो तो मैं पूछ ही लेता हूँ मैम से फोन करके नहीं वैसे पता, भी। दिस इज अ प्लेटफॉर्म ना, सो वी कैन आस्क, हाँ जी, और हाँ जी। है ना, अगर कोई पूछेगा तो फिर क्या होगा, एवरीबडी विल नो। एनीथिंग नहीं, एल्स ऐसा एनीबडी उसके हैज? सेपरेट तो नहीं। क्योंकि सबने ऑलमोस्ट अपने फोन्स बंद ही कर लिए हैं, कैमराज ऑफ ही कर लिए हैं, एक्सेप्ट अ वेरी फ्यू। इसी बहाने हम मिल जाते हैं, इसी बहाने हम सबकी शक्लें देखकर हाँ, मार लेते हैं। है ना? एनीथिंग एल्स किसी को पूछना हो? सो आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ अ डे। अब नेक्स्ट केस स्टडी लुधियाना टीम की, आई थिंक हमारी बारी है ना? वी विल सेंड यू द केस स्टडी एंड आई होप यू विल हैव so many questions, है ना? Be ready and bombard us with lot many questions, ठीक है? And we would love to answer most of them. हम सोच रहे हैं हम एक ऐसे बच्चे की केस स्टडी लें जो हेयरिंग एड में आता था। हम बेसिकली 2 केस स्टडीज लेना चाहते हैं स्पीच को रिलेटेड, क्योंकि स्पीच की केस स्टडी किसी ने जनरली नहीं ली है। वन इज, हमारा एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स दोनों डफ एंड डम थे, और वो आज 5.5 साल में वो हमारे पास आया है, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला, ठीक है? एक हम उसकी केस स्टडी लेना चाहते हैं, और दूसरा हम उस बच्चे की केस स्टडी लेना चाहते हैं जो हियरिंग एड में हमारे पास आया था, उसके हमारे क्या चैलेंजेस थे और उसको हमने किस तरह हमने इम्प्रूव किया है, ठीक है? आई थिंक इट विल बी अ वेरी टू इंटरेस्टिंग केस स्टडीज जो हम करेंगे। और आई थिंक स्पीच को रिलेटेड हम ज्यादा कोशिश करेंगे, और हम आपको सारी एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने वो केस स्टडी करी है, ठीक है? एक बच्चे का नाम तनवीर है और एक बच्चे का नाम कुलराज है। कुलराज ने हियरिंग एड्स के साथ आया, वो सिर्फ हमारे सेशंस में ही सेशन में हियरिंग एड लगाता है, और जो बच्चा तनवीर है उससे हमने साइन लैंग्वेज सीखी है। सो दे हैव आल्सो टॉट अस फ्यू थिंग्स। वी विल सेंड यू द वीडियोस ऑफ द चाइल्ड, वी विल हैव plans shared, and I think it will be a very interesting case study, ठीक है? So I think in a 3 days time we will meet again. तो मैंने आपको हिंट दे दिया हमारी केस स्टडी का, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बम्बार्डिंग ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? चलो फिर, लेट्स ओके देन, इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चन, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर कम जॉइनिंग, बाय। ये ना टेस्ट जो हुआ Thank you so much. सुन के देखो ये दे ही नहीं जानते